Hi, good morning, my dear student. Today we are going to start your chapter, The Three Orders. This is class 11th history, term 1, last chapter, The Three Orders. Dear student, if you will see my video which was uploaded by me on APS portal, where I discussed the three order, the starting portion. I was discussed the third order, pigeons free and unfree. It means soft and pigeons and nobles conditions. Their relations, how they lived in the venerable state. These all points discussed by me in your previous classes. So today I will not discuss this point, these all fact. I am not going to repeat this. Today we are going to discuss our next topic, the England. England feudalism developed in England from the 11th century, the Angles and Saxons. इंग्लैंड की स्थापना के समय इंग्लैंड कैसे बना और आज का इंग्लैंड और प्राचीन इंग्लैंड में क्या अंतर था, इन सारी चीज़ों को हम इस पैराग्राफ में, इस टॉपिक में पढ़ेंगे. माय डियर, इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द origin of England and the development of England, role of the tribals who lived in particular that area. My dear, शॉर्ट में अगर हम बात करें तो यूरोप में एक ट्राइबल्स थी, एंजल्स, और दूसरी सैक्सन्स. एंजल और सैक्सन्स जो दोनों कम्युनिटीज़ थी, इन दोनों कम्युनिटीज़ के अपने अपने कुछ एरिया थे, क्षेत्र थे जिस पे ये लोग शासन करते थे. आपका पैराग्राफ कहता है कि द एंजल्स एंड सैक्सन्स फ्रॉम सेंट्रल यूरोप हैड सेटल्ड इंग्लैंड इन द 6th century. द कंट्रीज नेम इंग्लैंड इज द वेरिएंट ऑफ एंजल लैंड. जो एंजल्स थे उन्हीं के नाम पे इंग्लैंड बना और फिर 12वीं शताब्दी ईस्वी में विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी, जो नॉर्मेंडी का ड्यूक था विलियम, उसने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया और अपनी सेनाओं के द्वारा सैक्सन किंग को पराजित किया. और इस प्रकार एक बड़े क्षेत्र में, एक बड़े भूभाग पे उसने अधिकार कर लिया. आइए देखते हैं टॉपिक इंग्लैंड. Saxons from the Central Europe had to settle in England in the 6th century. The country's name England is a variant of Angleland. In the 11th century, William, the Duke of Normandy, crossed the England channels with an army and defeated the Saxon king of England. From this time, France and England were often at war because of disputes over territory and trade. England feudalism developed in England from the 11th century. It is the clear information here. The feudalism developed in England from 11th century. The Angles and Saxons from Central Europe, जो 6th century में, जो यूरोप में एंजल्स कह लें, एंजल्स एंड सेक्शंस, एंजल्स एंड सेक्शंस जो दो ग्रुप्स थे, इंग्लैंड में आकर बस गए, सेटेड. इंग्लैंड देश का नाम एंजल लैंड के रूप में हुआ, इसे एंजल लैंड कहा गया. एंजल लैंड. द एंजल एंड सेक्शंस फ्रॉम द सेंट्रल यूरोप हैड सेटल्ड इन इंग्लैंड इन द 6th century. सेक्शंस और एंजल्स दोनों सेटल्ड हुए 6th century में आके इस पर्टिकुलर एरिया में. द कंट्रीज नेम इंग्लैंड इज द वेरिएंट ऑफ एंजल लैंड.
In an 11th century, the William, the Duke of Normandy, crossed the English Channel with an army and defeated the Saxon king of England. From this time, France and England were often at war because of dispute over territory and trade. I think this paragraph is very easy. There is no need to explain. Why? Because नॉर्मैंडी के शासक ने एक क्रॉस की, विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी जो इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके अपनी सेना के साथ सैक्सन किंग को पराजित करते इंग्लैंड के, और फिर उन्होंने फ्रांस और इंग्लैंड में जो रीजनल बाउंड्रीज थी उसके बीच जो ट्रेड्स थे, जो ट्रेड डिस्प्यूट्स थे, उसके लिए बार बार जो झगड़े होते थे, वार होते थे, युद्ध होते थे, इन चीज़ों को उन्होंने, इसी के लिए उन्होंने ऐसा किया, क्रॉस करके एक बड़े क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। विलियम फर्स्ट had the land mapped and distributed in a section of 180 Norman nobles who had migrated with him. The lord became the chief tenants of the king and were expected to give him the military help. They were obliged to supply a certain number of knights to the king. They soon began to give some of their own land to knights who would serve them just as they in turn served the king. They could not, however, use their knights for private warfare, which was forbidden in England. Anglo-Saxons, peasants became tenants of the various level of the landholders. William I, he reformed. विलियम फर्स्ट ने सबसे पहले भूमि के चित्रण किए, इट मीन्स मैप बनवाए, लैंड के मैप बनवाए, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर सेक्शंस, जमीन के नक्शे बना करके उन्होंने इस जमीन को अपने सेक्शनों में बांट दिया। तो 80 नॉर्मन्स नोबल्स, अपने जो सेक्शंस किए उसने मैप बनवाया, उनके सेक्शंस किए और अपने 180 नॉर्मन्स जो नोबल्स थे उनके उसमें उन्होंने दे दिया। यही लॉर्ड, राजा और मेन काश्तकार के रूप में डेवलप हुए। इट मीन्स द लॉर्ड बिकेम द चीफ टेनेंट्स ऑफ किंग एंड वर एक्सपेक्टेड टू गिव हिम द मिलिट्री हेल्प. दे वर ऑब्लाइज्ड टू सप्लाई द सर्टेन नंबर ऑफ नाइट्स टू द किंग. इसके बदले जो जमीनें जो विलियम फर्स्ट ने उन्हें बांटी थी लॉर्ड से वो एक्सपेक्ट करते थे कि वो जरूरत पड़ने पे उन्हें मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, एंड दे हैव टू प्रोवाइड आल्सो, उन्हें करवाना पड़ता भी था. दे वर ओब्लाइज्ड टू सप्लाई द सर्टेन नंबर ऑफ नाइट्स टू द किंग. कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए वो निश्चित मात्रा में नाइट्स अपने लॉर्ड को प्रोवाइड कराते थे. दे सून बिगेन टू गिफ्ट some of their own land to knights who would serve them just as they in turn served the king. They could not, however, use their knights of the private warfare, which was forbidden in England. जल्दी ही जो नाइट्स थे, नाइट्स को कुछ भूमि भी उपहार में मिलने लगी, जिससे वो उसी प्रकार की सेवा की आशा रखते थे जैसे वो राजा को करते थे. किंतु वे नाइट को अपने निजी युद्ध के लिए उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस पर इंग्लैंड में प्रतिबंध था. एंग्लो सेक्सन्स पीजेंट्स जो वेरियस स्टेट्स में विभिन्न स्तरों के भूस्वामियों के काश्तकार बन गए. मीन्स उनके एंग्लो सेक्सन्स पीजेंट्स बिकेम द टेनेंट्स ऑफ वेरियस लेवल ऑफ द लैंड होल्डर्स. एंग्लो सेक्सन्स कई लेवल पर उनके काश्तकार बन गए, लैंड होल्डर बन गए. इन चीज़ों में हमने देखा नाइट्स के बारे में. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द कंडीशन ऑफ नाइट्स. नाइट्स एक्चुअली दे वर पीजेंट्स. इफ दे स्किल्ड इन वॉरफेयर, if they skilled in the tactics of war, they change himself as a knight, and Lord provide him a piece of land that is called fief. We have already discussed. They
treated himself as a lord, and they connected with their lords as like lord connected with their king or their emperor. अपने जिस तरीके से लॉर्ड, जिस तरीके से उनका मास्टर राजा से कनेक्ट था, ठीक उसी तरीके से ये नाइट्स अपने अपने किंग से कनेक्टेड हो गए. नेक्स्ट, दैट इज factors affecting social and economic relations. While number of the first two orders saw the relations, saw the social system as stable and unchanging, there were several processes which were transforming the system. Some of these, such as changing in the environment, were gradual and almost imperceptible. Others were more dramatic, like the change in the agriculture, technology, and land use. These in turn were shaped by the head to an effect on the social and economic ties between lord and vassals. Let us examine these processes one by one. The affecting of social and economic relations. This paragraph, factors affecting social and economic relations. We are going to this. We are going to read. We are going to discuss about this topic. इस टॉपिक में हमने दो वर्गों के बारे में अभी पढ़ा. हमने जो फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के मेंबर्स थे और किस तरीके से उनकी म्यूचुअल बॉन्डिंग थी, सोशल अंडरस्टैंडिंग थी, एक सिस्टम के थ्रू वो किस तरीके से अपने अधिकारों को प्रॉपरली सेट किए थे, इन चीज़ों के बारे में और इनका क्या असर पड़ा ये सोशल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड्स पे. वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दैट. व्हाइल मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू ऑर्डर्स saw the social system as stable and unchanging. प्रथम दोनों वर्गों के सदस्य ने जो सामाजिक व्यवस्था को स्थिर और अपरिवर्तनीय पाया, परंतु वहाँ अनेक जो प्रक्रियाएं थी, जो व्यवस्थाएं धीरे धीरे बदल रही थी. There were several processes which were transforming the system, जो बदलाव ला रही थी. यद्यपि फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के लोग अपनी व्यवस्था को में कोई परिवर्तन नहीं देख रहे थे, अपने को स्टेबल पा रहे थे, लेकिन जो समय था, समय के अकॉर्डिंग बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बन रही थी जो इस व्यवस्था में बदलाव ला रही थी. सम ऑफ दीज सच एज चेंज इन द एनवायरनमेंट. ये जो परिस्थितियां थी जो बदलाव लाने का कारण थी, उसमें पर्यावरण में परिवर्तन और धीरे धीरे और लगभग एक बदलाव जो दिखाई दे रहा था. कुछ और परिवर्तन जैसे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, लैंड का रिफॉर्म और लॉर्ड और फ्यूडल के बीच के जो सोशल रिलेशंस थे, इकोनॉमिकल रिलेशंस थे, वो भी बदल रहे थे, उनके भी ऊपर प्रभाव पड़ रहा था. इट मीन्स जो अन्य परिवर्तन जैसे कृषि प्रौद्योगिकी में बदलाव, भूमि का उपयोग अधिक स्पष्ट था, लॉर्ड और सामंत के सामाजिक और आर्थिक संबंध इन परिवर्तनों से बने थे और इन्हें प्रभावित भी कर रहे थे. इन्वायरमेंटल चेंज हो रहे थे, लैंड से प्रॉपरली सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, तो ऑब्वियसली रिलेशन बिटवीन द लॉर्ड्स एंड द नाइट्स हैज बीन इफेक्टेड. होगा, इट विल इफेक्टेड. उसमें परिवर्तन तो आएगा ही आएगा और ऐसा ही हुआ. हम इन जितने चेंजेस हुए, जितने बदलाव आए, वी विल रीड वन बाय वन. लेट अस एग्जामिन दिस प्रोसेस वन बाय वन. The environment. Factors affecting social and economic relations. While member of the first two order saw the social system as stable and unchanging, there were several processes which were transforming the system. Some of these, such as change in the environment, were gradual and almost the imperceptible. Others were more dramatic, like the change in the agricultural, technological, and land use. These in turn were shaped by and had an effect on social and economic ties
between lard and vessel. Let us examine this process one by one. My dear, again I am going to explain this paragraph. Why? Because this is the very important. When you will read this paragraph, when you will understand this paragraph, you can easily understand the whole topic. कहता है कि सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं जो सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करते थे। यद्यपि जो फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के मेंबर्स थे, उनकी सामाजिक व्यवस्था को स्थिर और अपरिवर्तनीय पाया गया। उन लोगों की अवस्थाओं में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु यहाँ अनेक प्रक्रियाएं थीं, अनेक प्रोसेस थे, अनेक स्टेप थे जो व्यवस्था को धीरे धीरे बदल रही थी। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जिन पे हम चर्चा करेंगे, जैसे पर्यावरण, इन्वायरमेंट में जो बदलाव हुआ वो धीरे धीरे लगभग अदृश्य था। अन्य परिवर्तन जैसे कृषि प्रौद्योगिकी में बदलाव, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में चेंजेस, लैंड यूज में परिवर्तन, और लार्ड और सामंत जो वैसलेस थे और लॉर्ड्स थे, उनके बीच के जो रिलेशंस थे अब वो इकोनॉमिक बेस्ड होने लगे, ज़्यादा प्रभावित करने लगे वो। इन प्रक्रियाओं को हम अगर स्टेप बाय स्टेप पढ़ें तो पहले टॉपिक को देखते हैं, इन्वायरमेंट को। द फर्स्ट टॉपिक इन्वायरमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं। कहता है फ्रॉम द 5th to 10th century, most of Europe was covered with the vast forest. Thus the land available for agriculture was limited. Also present, the dissatisfied with their conditions could flee from the operations and take refuge in the forest. Europe was undergoing an intensely cold climatic spell in this period. This led to severe and prolonged winter, a shortened growing seasons for the crops, and reduced yield from the agriculture. 5वीं सदी से 10वीं सदी तक यूरोप का अधिकांश भाग घने वनों से घिरा हुआ था, दूर दूर तक फैले हुए जंगलों से घिरा हुआ था। अतः कृषि के लिए उपलब्ध भूमि बहुत ही कम थी। जंगलों के कारण फार्मिंग लैंड का एरिया सीमित था। इसके साथ ही कुछ परिस्थितियां भी थीं जो खेतों के विकास, फार्मिंग लैंड के डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए पूरी तरीके से विपरीत थी। ऐसी कौन सी अवस्थाएं थीं? अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से नोबेल्स अपने पीजेंट्स के ऊपर अत्याचार करते थे, ब्रूटल स्टेप्स लेते थे, और फिर पीजेंट्स उनसे बचने के लिए भागकर इन्हीं जंगलों में छुप जाया करते थे। उस समय यूरोप में तीव्र ठंड का दौर चल रहा था, काफ़ी ठंडी पड़ रही थी। उसमें सर्दियां प्रचंड और लंबी अवधि की हो गई। फसलों का उपज काल छोटा हो गया और इसके कारण किसी की जो खेती थी, जो प्रोडक्शन था, वो कम हो गया। 11वीं सेंचुरी तक आते आते थोड़ा गर्मी का मौसम आया, गर्माहट शुरू हुई और फिर टेम्परेचर भी बढ़ गया धीरे धीरे। इसका रिजल्ट खेती पे पड़ा, कृषि पे पड़ा। कृषि पे इसका अच्छा प्रभाव पड़ा। कृषकों को कृषि के लिए अब लंबी अवधि मिलने लगी, ज़्यादा टाइम मिलने लगा। मिट्टी पर पाले का असर कम होने के कारण आसानी से खेती की जा सकती थी, फार्मिंग की जा सकती थी। पर्यावरण इतिहासकारों का कहना है, जो इन्वायरमेंटल हिस्टोरियंस हैं, उनका मानना है
कि उस समय यूरोप के अनेक भागों के वन क्षेत्रों में उल्लेखनीय कमी हुई और जिससे कि खेती के क्षेत्र फार्मिंग लैंड एरिया का एक्सपेंशन हुआ, बढ़ा। कहता है फ्रॉम द 11th सेंचुरी यूरोप इंटर्ड a warm phase. Average temperature and increase pigeons now had a longer growing season and the soil now less subjected forest could be more easily plugged. Environmental historians have noticed that there was the significant resetting of the forest line in many parts of Europe. This made expansion of the area under cultivation possible. My dear, that's why I'm saying the 14th century, especially the 11th century, that was a time when the forest that was the huge amount, the forest in huge amount cut by the pigeons. Farming land was expand. It covered very vast area और इससे क्या हुआ, खेतों के क्षेत्रों में विस्तार से उत्पादन की दर बढ़ी और फिर एक तरीके से ब्रिटेन एक नए चरण में प्रवेश करने लगा। एक टॉपिक है हमारा लैंड यूज। लैंड यूज इनिशियली एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी वॉज अ वेरी प्रिमिटिव, द ओनली mechanical aid available to the peasants. Pigeons was the wooden plug drawn by a team of oxen. This plug could at best stretch surface of the earth and was unable to fully draw out the natural productivity of the soil. Agriculture was therefore very labor intensive. Field had to be dug by hand, often once in a 4 years. The enormous manual labor was required. Also, an effective methods of crop rotation was in use. The land was divided in half, and one field was planted in autumn with winter wheat, while other field was left fallow. Rye was planted on the peak of the fallow land in next year, while the other half was put to follow. With the system, the soil slowly the deteriorated and the famine were not uncommon. Chronic malnutritions alternated with the disadvantage, the famines and life was difficult for the poor. My dear, दोनों पैराग्राफों को अगर ध्यान से देखें आप, तो ऑथर आपको सीधा सा बताना चाहता है कि जमीन के प्रयोग की दशाएं बदलने लगी। अब प्रारंभ में जो खेती और जो खेती में प्रयोग होने वाली प्रौद्योगिकी थी, जो टेक्नोलॉजी थी, उसमें बहुत बदलाव आया। पहले जो खेती थी वो पुरातन थी, इसमें किसान को मिलने वाली जो मैकेनिकल ऐड थी, मैकेनिकल मदद थी, वो बैलों की जोड़ी से चलने वाले लकड़ी के हल थे, और यह हल जो उनको मिला था वो हल भी इतना अच्छा नहीं था। हल केवल पृथ्वी की सतह को ही खुरच ही सकता था। यह भूमि के प्राकृतिक उत्पादन, उसकी उत्पादकता वो पूरी तरीके से बाहर निकाल पाने में असमर्थ था। जैसे अगर गहरी जुताई होती है तो उत्पादन की क्षमता पृथ्वी की बढ़ जाती है, ज़मीन की बढ़ जाती है, खेतों की बढ़ जाती है। लेकिन अगर गहरी जुताई नहीं हुई तो उत्पादन आप उतना ज़्यादा नहीं प्राप्त करेंगे जितनी गहरी जुताई के उत्पादन, जितनी गहरी जुताई के खेतों से प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, कृषि में श्रम की आवश्यकता पड़ी। भूमि को अब 4 वर्ष में एक
मतलब कहने का सेंस है कि जो जो फार्मिंग लैंड थी उसको प्रायः 4 ईयर्स में एक बार हाथ से उसको खोदा जाता था, फावड़े की सहायता से उसकी जुताई होती थी। और इसमें अत्यधिक मानव श्रम, ह्यूमन लेबर का प्रयोग होता था। साथ ही जो फसल चक्र थी, फसल चक्र एक प्रवाहीन तरीके से उपयोग में आ रही थी और भूमि को 2 भागों में बांट दिया जाता था। एक भाग को जाड़े में और एक भाग को गर्मी में बोया जाता था गेहूँ, जबकि दूसरी भूमि को पड़ती या खाली रखा जाता था। अगले वर्ष पड़ती भूमि पर राई बोई जाती थी, जबकि दूसरा आधा भाग खाली रखा जाता था। इस अवस्था के कारण मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे ह्रास होने लगा, प्रयाकाल पड़ने लगे, दीर्घकालीन कुपोषण और विनाशकारी अकाल बारी बारी से पड़ने लगे, क्योंकि जमीन का एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा किया जाने लगा। जीवन अब अत्यंत कठोर हो गया, अत्यंत कठिन हो गया। इन कठिनाइयों के बावजूद लॉर्ड अपनी आय को अधिकतम करने के लिए उत्सुक रहते थे। हालांकि भूमि के उत्पादन को बढ़ावा संभव नहीं था, इसलिए जो किसान थे, कृषकों को मैनर की जागीर की समस्त भूमि को खेती के योग्य बनाने के लिए उनको बाध्य होना पड़ता था और इसके लिए उनके ऊपर तमाम सारे अत्याचार किए जाते थे और किसान बेचारा चुपचाप इन चीज़ों को सहता था। चूँकि वो खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकते थे क्योंकि वो कमज़ोर थे, इसीलिए उन्होंने इसका पैसिव रेजिस्टेंस का सहारा लिया। उन्होंने खेतों पर खेती करने में अधिक समय लगाने लगे अपने खेतों में, और लॉर्ड के खेतों में वो कम समय खेती करते थे। बेगार से बचने के लिए वो जंगलों में, खेतों में अपने जानवरों को लेकर चराने चले जाते थे। प्राय लॉर्ड में और पीजेंट्स में कई सारे विवाद हैं जिनके डिटेल्स इतिहास में भरे पड़े हैं। लॉर्ड इस भूमि को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझते थे जो पास्टरल लैंड थी, जबकि किसान कहते थे कि संपूर्ण समुदाय का जो पूरा मानव वर्ग है उसके लिए ये खेत यूज किया जा सकता है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट थी। तो अगर आप देखें इस टॉपिक को, तो डिस्पाइट दीज हार्डशिप द लॉर्ड वॉर अनेक्सेस टू मैक्सिमाइज देयर इनकम since it was not possible increases output from the land. The peasants were forced to bring under cultivation all the land in the manure state and spend more time doing this than they were largely bound to do. The peasants did not bow quality to oppression since they could not protest it openly. They resorted to passive resistance. They spent more time cultivating their own field and kept much the product that labor for themselves. They also avoided to performing the unpaid extra services. They came into conflict with the Lord and peasants. Lord over pasture and forest land and saw the land as resource to be used by whole community, while the lords treated these as their private property. माय डियर, किसानों में और लॉर्ड में इस बात को लेकर झगड़ा था कि जो चरागाह की भूमि थी, जो पास्टर लैंड थी, उसको जो लॉर्ड था वो कहता था ये हमारी ज़मीन है, और जो किसान थे, जो चरवाहे थे, जो पास्टलिस्ट थे, वो ये उनका मानना ये था कि ये जो खाली और जंगलों की ज़मीन है वो सभी की है, वो लॉर्ड की नहीं है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।